are you? Welcome to today's maths class, and today we will do decimals. Decimals. The word decimals originate from the Latin word decim, which means 10. Decimal number system is the position notation with the base 10. क्या होता है इसका base? 10. Which was first used in India and was taken up by the Arabs and introduced in Europe later. In the previous class, we have learned about decimals. Now we will further expand our knowledge. Decimal place value chart. Just as we have a place value chart for the whole numbers, we have a place value chart for decimals also. Since the first place after the decimal is got by dividing the number by 10, it is called tens place. Decimal के बाद जो first place होता है वो क्या होता है? Tens place. The second place after the decimal is got by dividing the number by 100. It is called hundredth place. The third place after the decimal is got by dividing the number by 1000. It is called the thousandth place. Quick funda. A decimal number can also be called a decimal fraction. यहाँ पे आपको decimal place value chart given है. Once if you go to left तो ये जाएगा tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 million and so on. इस तरीके से चलेगा. अब हम decimal पे जाते हैं तो ones के बाद यहाँ पे आगे decimal point, tens, hundreds, 1000s, THS लगेगा पीछे, ठीक है? 10,000s, 100,000s, 1 million. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. राइट द फॉलोइंग नंबर इन द डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट. आवर फर्स्ट नंबर इज 13.356. 13 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा वंस की पोजीशन पे और टेंस की पोजीशन पे हो जाएगा 1. सो 3 and 1. अब हम डेसिमल पार्ट में मूव करते हैं. डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा 3, यानी कि 10 की पोजीशन पे, देन 100 की पोजीशन पे 5, देन 1000 की पोजीशन पे 6. So this way we have to arrange the number in decimal place value chart. Clear? Next is expanded form of decimal number. There are 3 forms: place value form, decimal form and fraction form. Example लेते हैं. Expand 283.2 in all 3 form. First place value form में देखें. 2 की place value क्या है? 100. 200 हो जाएगी. Then 8 tens and 3 ones. और 2 की क्या हो जाएगी? डेसिमल का फर्स्ट प्लेस पे है तो 2 टेंस. डेसिमल फॉर्म में करेंगे 200 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 0.2. फ्रैक्शनल फॉर्म में 200 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 2.10. क्लियर? इस तरीके से बाकी सारे नंबर्स को भी करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Like decimal fractions. 2 or more decimal fractions are called like decimal if they have equal number of decimal place. However, the number of digit in the integral part does not matter. Means decimal के बाद equal places होने चाहिए. For example, 0.23 decimal के बाद 2 numbers है. 6.83 में भी decimal के बाद 2 number है. ठीक है? Same decimal place है. Here also 2. So all these are called like decimals because they all have 2 decimal places, unlike decimal fractions. 2 or more decimal fractions are called unlike decimals if they have unequal number of decimal place. For example, 3.6, 1 decimal place है. Here 2, here 3. So they are unlike decimals. In A, the number of decimal places are 1, 2 and 3. In B, the number of decimal places are 2 and 3. Same नहीं है, so they are unlike decimals. Next, changing unlike to like decimal fraction. How will we convert unlike decimal into like decimal? Unlike decimal fractions can be changed to like decimal by adding as many zero as required. For example, convert to like decimal. 68.216
343.5, 293.54, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम कितना है 3। सो हमें क्या करना है, तीनों को 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। सो विल ऐड 2 0 हियर, यहाँ पे 1 0। क्लियर? All the above can be converted into like decimal by adding 0 as shown. 68.216, 343.500, 293.540 are all like decimals with 3 decimal place. Next, equivalent decimal fractions. Unlike decimal which are equal in value are called equivalent decimal fraction. For example, 0.3, 0.30, 0.300, 0.3000, each of the above is equivalent to 0.3. Clear? 0.3 लेके आप कितने भी उसके बाद कितने भी जीरो ऐड करें, 0.30, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 30, बट उसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 0.3। 10th की पोजीशन पे यहाँ पे क्या है 3। सो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज ग्रेटर 15.0683 और 201.34। फर्स्ट चेक द इंटीग्रल पार्ट 15 एंड 201। इंटीग्रल पार्ट मीन्स डेसिमल से पहले का जो पोर्शन है, दैट इज। सो हेयर 201 इज ग्रेटर देन 15। सो कौन सा डेसिमल जो ग्रेटर हो जाएगा, 201.34 इज ग्रेटर देन 15.0683। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, विच इज स्मॉलर 17.035 और 17.038। इंटीग्रल पार्ट में देखेंगे तो दोनों में सेम है, दोनों में यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है। अब हम डेसिमल पार्ट पे मूव करेंगे। सो डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे भी 0 इक्वल है, देन यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 इक्वल, देन यहाँ पे 1000 की पोजीशन पे देखेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 8। सो 8 इज ग्रेटर देन 5, सो ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? रूल नंबर 1, राइट द गिवन नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर, देन राइट द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। सो वी हैव टू कन्वर्ट 2.5 इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2.5 है, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है उतने नीचे 0 आ जाएंगे। तो कितनी डिजिट है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 5 2s are 10 and 5 5s are 25. So our fraction is 5/2. This way we will convert the decimal into fraction. Clear? Next, conversion of fraction to decimal number. How will we convert a fraction into decimal? Rule number 1. Count the number of 0 following 1 in the denominator. Count equal number of places in the numerator starting from the ones digit, then place the decimal. For example, 369 upon 100 है, so there are 2 0 in denominator. So right hand side से हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 9 और 6 ये 2 डिजिट हो जाएगी, इसके बाद डेसिमल आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.69. So this way we have convert a fraction into decimal. Next, task 1. Subject enrichment. Write in expanded form. 2432.168. So we'll write 2000 plus 400 plus 30 plus 2 plus 0.1 plus 0.06 plus 0.008. Clear? So this way you can write other number in expanded form. Next, write as decimal form.
5,000, 8 ones, 2 10, 800. ये वाला जो है ये डेसिमल वाला है. 5,008 ones, that means 5008. ये क्या हो गया? 5008 पॉइंट, 10th की पोजीशन पे क्या है 2 एंड 100 की पोजीशन पे 8. सो आवर नंबर विल बी 5008.28. क्लियर? इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट, लर्निंग टारगेट 6.1. Convert the following into like decimals. 0.31 डेसिमल के बाद देखते कितने प्लेसेस हैं. Here 2, 3, 3 and 1, मैक्सिमम और 3. तो हमें सबको 3 में कन्वर्ट करना है. सेम होने चाहिए. 3, 1, 0 ऐड कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा. 10.429, देन 39.637, 182.800. Clear? So this way you will convert into like decimal. इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं. Next, find the greater fraction. 132.19 and 231.91. इंटीग्रल पार्ट देखेंगे. यहाँ पे 132 है, यहाँ 231 है. सो दिस विल बी ग्रेटर. तो हम लगा देंगे ये साइन. क्लियर? इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस पे कंपेयर करेंगे और साइन लगाएंगे. नेक्स्ट, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग लेस देन साइन. सो वी हैव टू कंपेयर कि कौन सा जो डेसिमल है वो बड़ा है. ये 3.926, बाकी 16.324, 16.428, 16.528, 16.234. सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ग्रेटेस्ट, देन उसके बाद हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 5. ये हमने नंबरिंग की है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बट हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो वी हैव टू राइट फॉर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो सबसे पहले ये आ जाएगा 3.926, देन 16.234, then 16.324, then 16.428 और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 16.528. Clear? So this way we have arranged it in ascending order. Next, convert into fraction. Decimal form में given है, we have to convert into fraction form. 83.246. So decimal को हटाएंगे और decimal के बाद कितनी digits है? 3. तो यहाँ पे 3 0 लगा देंगे. Now we have to change into simplest form. 2 से अगर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 500. 2 is a 2, 2 2 is a 4, 2 3 is a 6. So हमारा आंसर हो जाएगा 41,123 अपॉन 500 फ्रैक्शन की फॉर्म में. क्लियर? नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल्स. फर्स्ट इज 135 अपॉन 10. डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 1. सो राइट हैंड साइड से 1 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 13.5. क्लियर? इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स. रूल नंबर 1, write the digit of the given number one below the other such that all the decimal points are in the same vertical line. Add or subtract as you add whole numbers. Rule number 3, put the decimal point to the sum vertically below the other decimal point. Example समझते हैं. Find 105.827 from 728.34. Clear?
आपको सब्ट्रैक्ट करना है 728.34 में से सब्ट्रैक्ट करना है 105.827। तो हमेशा वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 एंड डेसिमल के बाद भी आपको ध्यान रखना है टेंथ की जो पोजीशन है उसके नीचे टेंथ वाला नंबर आ जाएगा, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 - 7 नहीं हो सकता, बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 10 एंड ये हो जाएगा 3, 10 - 7 3, 3 - 2 1, अगेन यहाँ पे 3 - 8 है तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 13 and this will become 7. So 13 - 8 gives you 5, 7 - 5 2, 2 - 0 2, 7 - 1 6. So our answer is 622.513. Clear? इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चंस पे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट, क्विक फंडा। All decimal points are in a column in the question and answer. Next, task 2. Subject enrichment. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट पैटर्न और उसके अकॉर्डिंग करना है। लाइक 1.3, 2.7, 1.1, 1.7 एंड 0.4। नाउ 1.3 में अगर 0.7 ऐड करेंगे व्हाट विल यू गेट, 2। 1.3 में 0.4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.7। क्लियर? एंड 0.7 एंड 0.4 को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.1। नेक्स्ट में देखते हैं 0.9 एंड 1.2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2.1, और 0.9 एंड 1.6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5। क्लियर? इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस में भी आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है एंड मिसिंग नंबर को फिल करना है। नेक्स्ट, लर्निंग टारगेट 6.2, सब्जेक्ट एनरिचमेंट। ऐड, आपको नंबर्स दे रखे, ऐड करना है 108.21, 25.025, 100.002 एंड 443.35। कॉलम में अरेंज करेंगे 100.21। क्लियर? नेक्स्ट इज 25.025, 3 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे भी एक 0 ऐड कर देंगे। देन 100.002, देन 443.350। क्लियर? नाउ वी विल ऐड 5 + 2 7, 5 + 2 7 and 1 8, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 8 16, 6 1 carry over, 4 + 2 6 and 1 7, 4 + 1 5 + 1 6. So our answer is 676.587. Clear? Same way you have to do other question. Addition है तो addition and subtraction है तो subtraction. Next, multiplication of decimals. Rule number 1. Take the two numbers as whole numbers. Remove the decimals and multiply. Rule number 2. In the product, place the decimal point after leaving digit equal to the total number of decimal place in both numbers starting from the rightmost digit. Rule number 3. Counting must always be done from the ones place of the product. Multiplication of decimal fraction by a whole number. Example लेते हैं, find 36.5 multiplied by 2. So पहले हम क्या करेंगे, हम एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल को कंसिडर नहीं करेंगे। 365 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 730। नाउ सी कितने थे, एक डिजिट के बाद डेसिमल था
तो हम प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 73.0, दैट इज 73। क्लियर। जैसे होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम उसी तरह, बस उसके बाद आपको चेक करना है कि कितने डेसिमल्स थे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट में डेसिमल ऐड कर देना है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। एग्जाम्पल, फाइंड 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3। दोनों नंबर में डेसिमल है। पहले हम क्या करेंगे, एज अ होल नंबर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आंसर इज 169। अब हम देखेंगे कितने के बाद, यहाँ पे 1 के बाद था, यहाँ पे 1 के बाद, मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो प्रोडक्ट में हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल ऐड कर देंगे राइट हैंड साइड से, तो ये जाएगा 1.69। क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। All properties of multiplication hold true for decimals. The product of decimal and a whole number multiply in any order remain the same. Means किसी भी जो डेसिमल नंबर है, होल नंबर, उनको आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। सो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3, आंसर आपका सेम रहेगा 1.2। क्लियर। नेक्स्ट, the product of two decimal number remain the same even if the order is changed. अगर दोनों डेसिमल नंबर हैं, still you can multiply it in any order. 1.2 multiply by 0.6, or you can do 0.6 multiply by 1.2. Answer will be same 0.72. Clear? The product of a decimal fraction and 1 is the decimal fraction itself. किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन एंड 0 इज 0। इफ यू विल मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर विद 0 you'll get 0। नेक्स्ट, जस्ट फॉर फन, starting from the green square you must reach the red square. You can only go through a large number, you cannot travel diagonally. तो ये एक्टिविटी आपको खुद से ट्राई करनी है। Next is division of decimal fractions. Division of a decimal by a whole number. Rule number 1, divide as in division of numbers. Rule number 2, when you reach the 10th place, place the decimal in the quotient. Example लेते हैं, solve 100.6 divided by 25. 100.6 को 25 से डिवाइड करना है, 25 4 से 100 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल है तो क्वेश्चन पे डेसिमल लगा देंगे, देन 6। आफ्टर यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, उसके बाद हमें जितने भी रिक्वायर्ड 0 है वी कैन ऐड दैट, तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 60 हो जाएगा, 25 2 सा 50। क्लियर। यहाँ पे देखिए 4, इसके बाद हमने डेसिमल लगाया था, 0 क्यों लगाया, क्योंकि जब हमने 6 नोट डाउन किया तो 6 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 25, तो हमने क्या लगाते हैं 0। उसके बाद हमने यहाँ पे वी पुट 0 हेयर, तो ये हो जाएगा 60, 25 2 सा 50, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 10, अगेन यू पुट अ 0, 25 4 सा 100, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, सो आंसर इज 4.024। क्लियर। नेक्स्ट, क्विक फंडा। When the number of digit in the dividend is less than the division is not complete, keep adding 0 at every step till the division is complete. Next, division of the decimal fraction by 10, 100, 1000, etc. Rule number 1. While dividing a decimal by 10, 100, 1000, etc., multiply of 10, the decimal shift to the left by as many places as there are 0 in the divisor. If the number of place in the integral part is less, then put the required number of 0 to the left of integral part, then shift the decimal point. Example लेते हैं, 81.6 divided by 10. 81.6 है, डेसिमल का 1 डिजिट है, हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 816/10 डिवाइड बाय 10, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1/10, so 816 divided by 10, that is
8.16। क्लियर? तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। एग्जाम्पल लेते हैं 11.5 डिवाइड बाय 2.3। यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। सो 11.5 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 115/10 डिवाइड बाय 2.3 है। अगेन डेसिमल हटाएंगे तो 23/10। सेम उसी तरीके से करेंगे, 115/10 मल्टीप्लाई का साइन आएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा 10/23। जो भी कट हो रहा है उसको कट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। क्लियर? नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ डेसिमल। अब होल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे? काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट इन द डिवाइजर, मूव द डेसिमल इन डिविडेंड दैट मैनी प्लेसेस टू द राइट, राइट द डिवाइजर विदाउट द डेसिमल, नाउ डिवाइड द नंबर एज यूजुअल। एग्जाम्पल लेते हैं 115 डिवाइड बाय 2.3। 115 क्या है? होल नंबर, उसको डिवाइड करना है डेसिमल नंबर, दैट इज 2.3। सो हमने क्या किया, पहले जैसे होल नंबर से हम करते हैं उसी तरीके से 115 डिवाइड बाय 23, दैट इज 5। क्लियर? अगर 2.3 है तो क्या हो जाएगा, सपोज अगर हम इस तरीके से करें 2.3 यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 115 मल्टीप्लाई बाय 10/23 मेगा 5। सो आवर आंसर इज 50। क्लियर? नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल। Rule number 1, count the number of decimal digit in the divisor, add as many zero to the dividend, remove the decimal in the divisor, divide as usual. Example लेते हैं 64 divided by 0.8। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे हमने क्या किया, डेसिमल के बाद 0 लिख दिया। क्लियर? ये हो जाएगा 64.0। यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 640 डिवाइड बाय 8, दैट गिव्स यू 80। क्लियर? नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। रूल नंबर 1, इफ इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, write the numerator as decimal. If it is mixed fraction, convert it into improper fraction. Divide as usual, जैसे करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे। Add as many zero after the decimal to the numerator as required to complete the division. For example, 7/8। 7 को 8 से डिवाइड करना है तो 7 पॉइंट जितने भी हमें जीरो रिक्वायर्ड है उतने जीरो लगा देंगे। अब 7 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 8, still put 0 in the quotient। उसके बाद हम लगाएंगे डेसिमल, ये हो जाएगा 70। 8 8 से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, अगेन 0, 8 5 जा 40, ये आ गया 0। सर क्वोशिएंट इज 0.875। क्लियर? नेक्स्ट, क्विक फंडा। A whole number is a decimal with the many decimal places as required. Next, critical thinking, learning through puzzle. यहाँ पे आपको क्या करना है, 3050 डिवाइडेड बाय 10, 10 से करेंगे तो आ जाएगा 305। देन आपको 5 से यहाँ पे डिवाइड करके लिखना है, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करके। जो जो आपको स्टेप्स दे रखे यू हैव टू फॉलो दैट। क्लियर? नेक्स्ट, टास्क 3, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। 12.2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो हम क्या करेंगे, जैसे होल नंबर मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिंपल वैसे करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
यहाँ पे कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, तो हम प्रोडक्ट में 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो दैट इज 24.4. क्लियर? सेम वे यू हैव टू डू अदर क्वेश्चन. नेक्स्ट, लर्निंग टारगेट 6.3. Subject enrichment. Find the product. 28.3 multiplied by 14. पहले हम जैसे होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे. 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी ओवर, 8 4 ज़ा 32 and 1 33, 3 कैरी ओवर, 4 2 ज़ा 8 and 3 11. 0 लगा देंगे, ऐड करेंगे, 3 3 6, 8 and 1 9. So आंसर इज 3962. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे. क्लियर? सेम वे यू हैव टू डू अदर क्वेश्चंस. नेक्स्ट, टास्क 4. Subject enrichment. Fill in the blanks. 18.1 divided by 10. 10 से डिवाइड करना है. यहाँ पे कितने जीरो है? 1. दैट मीन्स जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे 1 के बाद था, अब यहाँ पे 2 के बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.81. क्लियर? इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स. Example, the product of two number is 49.45. If one of the number is 2.3, find the other. Product दे रखा है, product of two number is 49.45. One of the number is 2.3, तो other number क्या हो जाएगा? Product divided by one of the number, that is 49.45 divided by 2.3. तो आंसर क्या आ जाएगा? 21.5. So other number is 21.5. Next, task 5. Subject enrichment. Simplify. 5 multiplied by 6 divided by 3 plus 2. Simplify करना है. बॉड मास का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा, उसी रूल को फॉलो करना है. 5 multiplied by 6 divided by 3 plus 2. सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड. So 5 into 6 divided by 3, that is 2 plus 2. उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई, जाएगा 10 plus 2, that is 12. So our answer is 12. Clear? Same way you have to do other question. Next, rounding of decimal fraction. If you have ever been to a Bata showroom, the cost of pair of shoes or chappals would probably read as rupees 348.65, but we pay rupees 350. For example, rupees 348.65 has been rounded off to 350. Cost क्या होती है? उस पर लिखी होती है 348 रुपीज़ 65 पैसा, बट हम एक्चुअली में क्या करते हैं? उसको राउंड ऑफ करके पे करते हैं 350 रुपीज़. सेम वे यहाँ 2.43 है, उसको राउंड ऑफ किया गया है 2.44. 2.5337 को राउंड ऑफ किया है 2.53. क्लियर? इस तरीके से राउंड ऑफ करना है. सिमिलरली, व्हेन वी से द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 2.5 billion, this is not the exact number. The number of people must be close to 1/2 billion. Hence, it has been round off to 1/2 billion. So 2.43. इसको हमने क्या किया है? राउंड ऑफ किया है 2.44 एंड 2.4381 को राउंड ऑफ किया है 2.44 पे. इसको हमने राउंड ऑफ किया है 2.4381 को, तो क्या हो जाएगा? 2.44. क्लियर? The above method is convenient and help us to remember very large number easily. It also simplifies calculation of large numbers. Next is rounding off to nearest 1. While rounding off the decimal fraction of the nearest 1, if the digit in tens place is less than 5, then the tenth place and all the following place are replaced by 0. For example,
63.37। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 क्या है, 3 इज लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा, बाकी जो है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63। नेक्स्ट, इफ द 10th प्लेस इज इक्वल्स टू और मोर देन 5, then the digit in the ones place is increased by 1 and all digit after the decimals are reduced to 0. For example, 86.872। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे जो डिजिट है इसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगा 87.00। क्लियर? नेक्स्ट, correct to 1 decimal place. When the digit in 100th place is less than 5, the 100th place is following digit are replaced by 0. For example, 18.732। यहाँ पे क्या है, 3 है, that is less than 5, तो क्या हो जाएगा, बाकी की डिजिट वैसे ही रहेगी और ये जो है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगी, तो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 18.700। व्हेन द डिजिट इन 100 प्लेस इज इक्वल्स टू और दैट इज मोर देन 5, द डिजिट इन 10th प्लेस इज इंक्रीज बाय 1 एंड द फॉलोइंग डिजिट बिकम 0। फॉर एग्जाम्पल 25.897 है, यहाँ पे अगर देखें 100 की प्लेस पे क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो उससे पहले वाला जो है इसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, हो जाएगा 25.9 और बाकी हो जाएंगे 0। क्लियर? नेक्स्ट, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। When the digit in the 1000th place is less than 5, the 1000 place and the following digit are replaced by 0. एग्जाम्पल लेते हैं 263.434, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। अगर 1000 की प्लेस पे देखें तो क्या है, 4, दैट इज लेस देन 5, तो बाकी की डिजिट एज इट इज रहेंगे और ये 0 से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, when the digit in 1000th place is equals to or more than 5, the digit in 100th place is increased by 1 and the following digit become 0. For example here 1000 की प्लेस पे क्या है, 7, that is more than 5, तो जो 100 की प्लेस पे डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी 9, so 43.990। क्लियर? नेक्स्ट, टास्क 6, subject enrichment, round of 2 nearest ones, 1 place, 38.238। यहाँ पे क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 is less than 5, so इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 38.000 और we can write 38। Clear? Same way you have to other question. So here we end the chapter. I hope you understand the chapter well. Now you have to practice it.